उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पे आप whatever the things we are continuously discussing with the help of online session, you are also supposed to have a glance on the given content by the institution. In my last session, we started the discussion of chapter 3, class 7, the changing earth, in which we discussed about the Pangea, Triassic, Jurassic, etc. and etc. In which I told you that Alfred Wegener was the scientist who gave the concept that millions years back, all the separated continent, whatever we are still seeing, we are still watching, is jointly with each other. In that I told you, due to having liquid component in the inner side of the earth, it means in mantle and core, the solid part of the crust is floating over the mantle. These particular plates are known as tectonic plates. These particular plates are known as टेक्टोनिक प्लेट. जो आज आप भिन्न भिन्न महाद्वीप देखते हैं वह वस्तुतः पहले एक था, लेकिन अब जैसे आप समझो एक उदाहरण के साथ, these are the two things which is just attached with each other. You are seeing in such kind of manner, but definitely we are seeing that their base are different. So due to that, due to floating over mantle and all, it starts separated, and due to that the current scenario of the world take place. Now you will ask it to me that what was the reason behind the separation. एक बहुत सरल उदाहरण मैं देता हूं कि आखिर यह जो दो चीजें नीचे अलग अलग होने के बाद भी पहले अगर ऐसी थी तो ये अलग कैसे हुई. भाई, घर में बर्तन होगा, बर्तन पर पानी होती है, रख लो, भर लो, पानी ठंडा है, उसके ऊपर प्लेट डाल दो, वो प्लेट स्थिर रहेगा. the plate is not going to be displaced. क्यों? शांत है. लेकिन now you start the gas. अब जब अंदर से गैस जलने के बाद जनरेशन ऑफ हीट होगा तो क्या होता है? एक प्रेशर क्रिएट होता है. क्या होता है? प्रेशर क्रिएट होता है. और उस प्रेशर के कारण आप क्या देखते होंगे कि बर्तन के ऊपर रखे जो ढक्कन है वो कंपन करने लगते हैं. दे स्टार्ट vibrating. So on the basis of same kind of principle, due to having excessive heat in the inner portion of the earth, वो क्या होता है? हीट जनरेट करता है, गैस जनरेट करता है, और जिसके कारण कि उस प्लेट में कंपन होते रहता है, और जिसके कारण कि नतीजा निकला कि करोड़ों वर्ष, मिलियन ईयर्स के बाद वो हिलते अलग होते चले गए. एंड ड्यू टू दैट द ऑल मेजर ऑफ 7 टेक्टोनिक प्लेट्स जो पहले एक जगह थे वो सेपरेटेड होते डिफरेंट जगहों पर चल गए, और जिसके कारण कि आज पूरे विश्व को 7 भिन्न महादेशों में बांट दिया गया. सो द मेन फीचर ऑफ दिस थ्योरी given by Alfred Wegener was, first one, the earth consists of plates known as tectonic, what I speak. Second, there are 7 major
and several minor plates, they are floating independently. अब 7 मेजर एंड सेवरल माइनर्स का मतलब क्या हुआ? जो 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स थे, दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट, एंड द माइनर प्लेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और फॉर द प्रेजेंस ऑफ आइलैंड्स इन द वर्ल्ड. The plates are continuously moving, but they move at a extremely low rate, about a few millimeter per year. अब चूंकि उनके जो कंपन की गति है, मूवमेंट की गति है, वो बहुत 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 कम रहती है, इनफैक्ट इन मिलीमीटर रहती है. तो जिसके कारण कि हम लोगों को जो प्रभाव दिखना चाहिए वो आसानी से नहीं दिखता है, बल्कि काफी लाखों साल लगता है, काफी समय लगता है. और मैंने अपने पिछले सेशन में कहा है कि ड्यू टू वेरी वेरी लो स्पीड ऑफ फ्लोटिंग, द प्लेट ऑफ इंडिया took millions of years to travel from nearby Madagascar to currently in the southern part of Asia. The energy required to move these plates is produced by internal heat of the earth. What I told it to you कि excessive heat के कारण, टेम्परेचर हाई होने के कारण जो है वह एनर्जी जो निकलती है, जिसके कारण कि उन प्लेट्स में कंपन होता है. एंड अल्टीमेटली द मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्स प्लेस ड्यू टू वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, means acting on tectonic plates. The forces are basically going to be classified into 2 types: exogenic इंडोजेनिक. 2 प्रकार के फोर्स होते हैं. एक को एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है और एक को इंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है. Exogenic force originate on the surface of the earth. These forces act in form of rivers, wind, glacier and sea waves. मतलब जो सतह के ऊपर जो फोर्स जनरेट हुआ, that one is going to be considered as exogenic force. और इंडोजेनिक, it originates inside the earth or within the earth. These forces can produce sudden or slow movement. It causes the slow movement of the tectonic plates. They also cause horizontal and vertical movement. इस तरह से भी, इस तरह से भी. अब वही कॉन्सेप्ट आप देखना, जब प्लेट बर्तन के ऊपर रहता है तो ऊपर भी ढप 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 करता है, आवाज करता है और हिलता भी है. तो ऐसा नहीं है कि द एनर्जी व्हाटएवर इज गोइंग टू बी जनरेटेड फ्रॉम इनसाइड द अर्थ ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड टेम्परेचर, कि भाई वो सिर्फ परपेंडिकुलर या हॉरिजेंटल जो है वो मूवमेंट कराएगा. नहीं, वो हर तरह से, मतलब ऑल राउंड उसमें जो है मूवमेंट होता है. दिस मूवमेंट गिव राइज टू वेरियस रिलीफ फीचर्स. द सडन मूवमेंट आर एक्सपीरियंस्ड थ्रू इरप्शन ऑफ वोल्केनो एज वेल एज अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक में जो भूमि, एक चीज बताओ कि जो अर्थक्वेक होता है, अगर उसमें कंपन सिर्फ एक ही दिशा में हो, देन व्हाट विल हैपन? एनीथिंग विल बी शिफ्टेड फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट. लेकिन वो होता क्या है? टूट जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें उसी वक्त ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं से, सभी प्रकार से, मतलब वो जो फोर्स उस पे एक्ट होता है वो डिफरेंट साइड से होता है, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, एंगुलर, जिसके कारण कि वो चीजें डिमोलिश हो जाती है. दिस वन इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्टोनिक